جیسے ہی حضرت عمر پر حملہ کیا گیا، حضرت عمر زمین پر گر گئے اور ان پر حملہ کرنے والا فیروز مسجد سے بھاگنے لگا، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا، فیروز نے اسی خنجر سے اپنا گلا کاٹ دیا، جس کے بعد مسلمان حضرت عمر کو اٹھا کر ان کے گھر لے کر آئے، لیکن گھر پہنچتے ہی جب انہیں کھجور کا پانی اور دودھ پلایا گیا تو وہ ان کے معدے میں جانے کے بجائے ان کے زخموں سے باہر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کے ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ یا امیر المومنین، اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اب آپ کا زندہ رہنا امپاسبل ہے۔ اب جب حضرت عمر نے اپنے ہی موت کی خبر سنی تو وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ مسلمانوں کی اس خلافت، جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، کا نیا خلیفہ کون ہوگا۔ تو اب حضرت عمر سے ان کے منسٹرز، جنرلز اور بڑے بڑے صحابہ آ کر ملنے لگے اور سب مل کر حضرت عمر کو اسلام کے تیسرے خلیفہ کے بارے میں اپنی رائے دینے لگے۔ تو سب سے پہلے ایک آدمی نے حضرت عمر کو اپنی رائے دی کہ یا امیر المومنین، آپ دنیا کے اتنے بڑے خلیفہ ہیں اور دنیا کا رواج یہ ہے کہ ہر بڑے بادشاہ کے بعد اسی کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے، تو اب آپ بھی اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ بنائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اسے دیکھا اور کہا، اللہ تمہیں تباہ کرے، افسوس ہے تمہاری اس سوچ پر۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ مسلمانوں کی خلافت میرے خاندان کو ملے، کیونکہ حضرت عمر یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی خلافت بھی رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کی طرح صرف ایک خاندان کے کنٹرول میں رہے۔ اب جب حضرت عمر نے سب کے سامنے اپنے بیٹے کو خلافت سے دور کر دیا تھا تو مدینہ کے سارے لوگ حیران تھے کہ آخر حضرت عمر کس کو خلیفہ نومینیٹ کریں گے۔ فائنلی حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور اسے کہا، لکھو، میں اپنے بعد صرف 6 لوگوں کو مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے قابل سمجھتا ہوں۔ یہ 6 صحابہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ ان سب کا تعلق ان 10 لوگوں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، جنہیں 10 مبشرہ 10 بلیس صحابہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ان 10 صحابہ میں ایک تو حضرت عمر خود تھے اور 2 صحابہ ان سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور 7 صحابہ ایسے تھے جو اب بھی زندہ تھے۔ تو حضرت عمر نے ان 7 صحابہ میں سے 6 کو خلافت کے لیے نومینیٹ کیا اور صرف ایک کو باہر رکھا، کیونکہ اس صحابی کا نام سعید بن زید تھا، اور یہ حضرت عمر کے کزن اور انہی کے قبیلے سے تھا۔ مطلب حضرت عمر اگین یہ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت کسی ایک خاندان کے کنٹرول میں آئے، چاہے وہ خاندان ان کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ہی حضرت عمر نے یہ آرڈر بھی دیا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھی خلافت کے اس فیصلے میں شامل کیا جائے، لیکن اسے مسلمانوں کا خلیفہ بننے کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر نے وفات سے پہلے مسلمانوں کو کلیئر آرڈرز دیے تھے کہ مجھے دفنانے کے فوراً بعد ان 6 صحابہ کو مدینہ کے ایک گھر میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ خلیفہ کا فیصلہ کر سکے، جس کے بعد ان کے پاس صرف 3 دن کا ٹائم ہوگا کہ یہ لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر کے کسی ایک کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بنائیں، اور ساتھ ہی 50 لوگوں کو تلواروں کے ساتھ اس گھر کے باہر ان کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا جائے۔ ایسا حضرت عمر نے اس لیے بھی کیا کہ ان 6 لوگوں میں سے کوئی بھی خلیفہ کے اس الیکشن کے دوران اپنے قبیلے کے لوگوں سے نہ مل سکے، تاکہ وہ ان کے ذہنوں میں ادھر ادھر کی باتیں نہ ڈالیں اور یہ خود اپنی مرضی سے فیصلہ کریں۔ اور پھر حضرت عمر نے اپنا آخری حکم دیا کہ جب یہ 6 صحابہ کسی ایک کو خلیفہ بنا دیں، اس کے بعد ہر آدمی کو یہ فیصلہ ماننا ہوگا، اور جو نہ مانے اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ اس طرح حضرت عمر نے مسلمانوں کی تاریخ کے پہلے الیکشنز کا سسٹم بنایا، اور صرف مسلمانوں کی نہیں
बल्कि ये दुनिया के सबसे पहले इलेक्शंस में से एक था। तो अब ये सब करने के बाद हजरत उमर ने आने वाले नए खलीफा को अपनी आखिरी एडवाइस दी। ए मुसलमानों के नए खलीफा, हमेशा अल्लाह से डरते रहना, मुहाजिरीन और अंसार का खास ख्याल रखना, तुम्हारी खिलाफत में रहने वाले नॉन मुस्लिम्स की ऐसी हिफाजत करना जैसे तुम अपने मुसलमान भाइयों की करते हो, और याद रखना कभी भी अपने खानदान के लोगों को मुसलमानों की गर्दनों पर सवार मत करना। नाउ जैसे ही हजरत उमर को दफनाया गया, ये 6 सहाबा मदीना के एक घर में जमा हुए और हजरत उमर के ऑर्डर्स के मुताबिक इस्लाम के तीसरे खलीफा का फैसला करने लगे। अब अगर इन 6 सहाबा की लाइफ्स को गौर से देखा जाए तो इनमें से 3 सहाबा ऐसे थे जो हजरत उमर के दौर में फौजी जनरल्स थे और बाकी 3 ऐसे थे जो सिविलियंस थे। तो जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, इन 3 फौजी सहाबा ने अपने आप को खिलाफत की रेस से बाहर कर दिया और अपना वोट बाकी 3 सिविलियन सहाबा को दिया, जिसमें सबसे पहले जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना वोट हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया। हजरत तल्हा ने अपना वोट उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया और साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना वोट अब्दुर्रहमान बिन औफ को दिया। तो अब खिलाफत के लिए सिर्फ 3 नाम बाकी रहे, अब्दुर्रहमान, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये देखकर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि देखो, मैं भी मुसलमानों की इस एम्पायर का खलीफा नहीं बनना चाहता। जिसके बाद ऑफ कोर्स खिलाफत के लिए सिर्फ 2 नाम बाकी रहे, उस्मान और अली। इस वक्त उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एज ऑलमोस्ट 70 साल थी, जिसके मुकाबले में हजरत अली की एज सिर्फ और सिर्फ 45 ईयर्स थी। मतलब हजरत उस्मान हजरत अली से तकरीबन 25 साल बड़े थे। और इन दोनों में मुसलमानों का खलीफा कौन होगा, यह फैसला हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने करना था, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना वोट किसी को नहीं दिया था। अब जब मुसलमानों का नया खलीफा चूज करने की सारी ताकत अब्दुर्रहमान बिन औफ के हाथ में थी, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तो अब इसका फैसला करने से पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना के बड़े बड़े सहाबा के पास गए और उनसे उनकी राय पूछी। जिसके बाद वो मुसलमानों की फौज के कमांडर्स के पास गए, उनकी भी राय ली और खलीफा के इस डिसीजन में अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मदीना के औरतों से भी मशवरा किया। इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीना के यूथ और इवन गुलामों के पास भी गए कि इस्लाम का नया खलीफा किसको होना चाहिए। तो अब इन सब लोगों से मिलने के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ को यह बात कंफर्म हो चुकी थी कि पूरे अरब में हजरत उस्मान और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ज्यादा कोई भी खिलाफत का हकदार नहीं है। लेकिन इन सब लोगों से बात करने के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नोट किया कि अरब की आवाम में हजरत उस्मान की पॉपुलैरिटी हजरत अली से थोड़ी सी ज्यादा है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि हजरत उस्मान एक सहाबी होने के साथ साथ इस खिलाफत के सबसे अमीर आदमी भी थे और मुसलमानों की इस पूरी खिलाफत में अपनी जेनरोसिटी और सखावत की वजह से मशहूर थे, जिसकी वजह से अरब के आम लोग हजरत उस्मान को बहुत पसंद किया करते थे। इसके अलावा एक पॉइंट यह भी था कि अब तक हजरत उमर अपने 10 साल की खिलाफत में एक बहुत ही सख्त खलीफा थे और उन्होंने अपने 10 सालों में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे। लेकिन हजरत उस्मान के बारे में यह मशहूर था कि यह हजरत उमर से बिल्कुल ऑपोजिट एक बहुत ही नरम दिल इंसान है। और हजरत अली के बारे में सबको पता था कि वो भी हजरत उमर की तरह एक सख्त खलीफा बनेगा। यह देखकर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए और उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम मेरी जगह होते तो किसको खलीफा बनाते। जिस पर हजरत उस्मान ने कहा कि मैं अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुसलमानों का खलीफा बनाता।
इसी तरह हजरत अब्दुर्रहमान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी गए और उनसे भी यही बात पूछी। तो हजरत अली ने भी कहा, मैं मुसलमानों का खलीफा उस्मान को बनाता। जैसे ही 3 दिन पूरे हुए, मदीना के सारे मुसलमान फजर की नमाज में मस्जिद नबवी में जमा हुए और इस बात का इंतजार करने लगे कि मुसलमानों का नया खलीफा कौन होगा। कहा जाता है कि उस दिन मस्जिद में इतने लोग जमा थे कि इवन हजरत उस्मान को भी बैठने की जगह नहीं मिली और वो मस्जिद के सबसे आखिर में जाकर बैठे। नाउ पूरी मस्जिद खामोशी से तीसरे खलीफा के नाम का इंतजार करने लगे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ इन सब के सामने खड़े हुए और एक लंबी दुआ करने के बाद सबसे पहले हजरत अली को अपने पास बुलाया और उनका हाथ पकड़कर पूछा, अली, क्या तुम अल्लाह, उसके रसूल और अबू बकर और उमर के तरीके पर चलोगे? तो हजरत अली ने कहा कि मैं उतना ही कर सकता हूं जितना मुझ में ताकत हो, मतलब आई विल डू माई बेस्ट। जिसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजरत उस्मान को अपने पास बुलाया, उनका हाथ पकड़ा और उनसे भी यही सेम बात पूछी, जिस पर हजरत उस्मान ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा ही करूंगा। आखिर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपने हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, खिलाफत की जो जिम्मेदारी आपने मेरे ऊपर डाली थी उसे मैं आज उस्मान के हवाले करता हूं और यही मुसलमानों का नया खलीफा होगा। यह सुनकर सबसे पहले हजरत अली ने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की, जिसके बाद मस्जिद में बैठे सारे लोग हजरत उस्मान के पास आकर उनके हाथ पर बैत करने लगे। तो हजरत उस्मान मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और अपनी खिलाफत की पहली स्पीच की, जिसमें उन्होंने लोगों को दुनिया की मोहब्बत छोड़कर आखिरत की जिंदगी की तैयारी करने का हुक्म दिया। ऑलमोस्ट 70 साल की उम्र में खलीफा बनने के बाद हजरत उस्मान ने अपना सबसे पहला हुक्म यह दिया कि मुसलमानों की इस खिलाफत की पूरी फौज और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तनख्वाहों को बढ़ा दिया जाए। और फिर मदीना से हजरत उस्मान ने सारे गवर्नर्स की तरफ लेटर्स भेजे, कूफा, बसरा, दमश्क, अलेक्जेंड्रिया। इन लेटर्स में हजरत उस्मान ने क्लियर ऑर्डर दिया था कि हजरत उमर तो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मुसलमानों की यह खिलाफत अब भी उसी तरह चलेगी जैसे हजरत उमर के दौर में थी। अब जैसे ये लेटर्स मदीना से इन गवर्नर तक पहुंचे तो वो सब इन लेटर्स को पढ़कर हैरान रह गए, क्योंकि पहली बार ये लेटर्स खलीफा उमर बिन खत्ताब की तरफ से नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़ान की तरफ से थे। और इस तरह इस्लाम का एक नया दौर शुरू हुआ, खिलाफत ऑफ उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। सब्सक्राइब।